ناول لا، ایپیسوڈ نمبر 5، مصنفہ فاطمہ نور۔ اس کے لیے ایک جاب ناکافی تھی، گھر پیسے بھیجنا آپشن نہیں، فرض تھا۔ جتنی تنخواہ اسے پہلی بار ملی اس نے کرائے کی رقم نکال کر سب پاکستان بھجوا دی۔ اس کے لیے بانو کی طرف سے کروشیا کا معاوضہ کافی تھا۔ اس کی ضروریات بابا کی علاج سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ وہ خرچے کرنے سے پرہیز کرتی، اسٹور سے فینس کا فاصلہ زیادہ نہ صحیح کم بھی نہیں تھا، لیکن وہ چل لیتی۔ ٹیوب پر یا لوکل بس پر جانے کے لیے وہ پاؤنڈز خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں لوکل بس اور ٹیوب پر صرف اسٹوڈنٹس کو 30% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، یا پھر بعض معذور افراد کو اسے ڈسکاؤنٹ ملتا۔ وہ تب بھی پیسے بچانے کے لیے پیدل سفر کرنے کو ترجیح دیتی۔ اس نے گھر والوں کو بھی زیادہ کال کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ کرتے تو چند منٹ بات کر کے بند کر دیتی، خود وہ کال کرتی نہیں تھی۔ یہ اس کے لندن میں آنے کے 1.5 ماہ بعد کا واقعہ تھا، جب ایک رات اسے واپسی پر دیر ہو گئی۔ سڑکیں آج کل سنسان تھیں کہ کل رات ازلنگٹن میں قتل کی واردات کے باعث پولیس کی جانب سے احتیاط کا کہا گیا تھا۔ سڑکیں وہ تیزی سے چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب پاس سے کسی کھٹکے کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کو اس کا دل سکڑ گیا، پھر ہمت کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے تھا۔ اس کی پوری ہستی وہیں رک گئی، قدم تیز تھے، یوں جیسے کوئی پیچھے سے بھاگ رہا ہو۔ خوفزدہ وجود کے ساتھ وہ پلٹی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو زخمی تھا، زخمی ٹانگ کے ساتھ وہ جس قدر تیزی سے بھاگتے ہوئے آ سکتا تھا آ رہا تھا۔ تم بات سنو، میری مدد کر دو پلیز۔ اس کے پاس آ کر وہ رکا تو معطر کو ہوش آیا تھا۔ اس کی ٹانگ پر شاید کوئی زخم تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی، گلی مکمل سنسان تھی۔ مجھے گولی لگی ہے، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، خدا کے واسطے پولیس کو کال کرو۔ وہ ہراس تھا۔ معطر کا دماغ 200 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ پرسکون پرسکون رہو، میں کال کرتی ہوں۔ بیگ سے موبائل نکالتے بخلاہٹ سے اس نے اس کا نمبر ملانا چاہا۔ اسے نمبر نہیں آتا تھا۔ نمبر کیا ہے پولیس کا؟ آواز کپ کپا گئی۔ ہم بتا دیتے ہیں مادام۔ اس کا دل رک گیا، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، غائب ہو جائے، تنہا وہ اور ایک زخمی نوجوان۔ اللہ، ذرا دیکھیں تو کون ہے جس نے بہادری پلس بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قدر خراب حالات میں یہاں رکنے کی جرت کی۔ اے پکڑو اسے۔ وہ جو زخمی تھا وہ ڈر کر بھاگنے لگا جب ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اسے پکڑا۔ معطر کی چیخ نکلی۔ دوسرا لڑکا فوراً سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ چھوڑو۔ بھاری ہاتھ ہٹاتے اس نے جھٹکا دیا۔ لڑکا کمزور نہیں تھا، لیکن یوں ہی اسے لگا شاید وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، شاید اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر ڈھیلا پڑا تھا۔ وہ فوراً بھاگنے لگی جب وہ گویا ہوش میں آتے جھٹکے سے اس تک پہنچا، اس کی کلائی تھام کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا، وہ گھرایا تھا۔ معطر نے خشک ہوتے سانس سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نقاب کی صورت باندھا گیا سیاہ رومال، سر پر سیاہ کیپ، ان سب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، سرخ آنکھوں میں غصہ۔ وہ آنکھیں پکڑو اسے۔ دوسرے لڑکے نے پٹخ کر زخمی کو وہیں نیچے پھینکا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ زندہ رکھیں یا… اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ وہ اس طرح نہیں مرنا چاہتی تھی، اس طرح نہیں، کسی اجنبی ملک کی سنسان گلی میں یوں لاوارثوں کی طرح نہیں۔ مار دو، ہمارے خلاف جو جائے گا یہی ہوگا۔ اس نے ختم ہوتی ہمت سے کچھ بولنا چاہا، نظر اسی لڑکے پر تھی۔ اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں کو جانتی تھی۔ وہ ان آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا مت کرو۔ بالآخر حلق سے کچھ آواز نکلی۔ لڑکا درد سے مسلسل کراہ رہا تھا، اسے بہت شدت سے رونا آیا۔ ایکس، مار دو اسے۔ نہیں، مت کرو، خدا کے لیے۔ وہ گڑ گڑانے لگی تھی۔ لڑکا چھوٹا تھا، وہ زخمی تھا، وہ مر رہا تھا۔ سفید نقاب والے نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ خدا کے لیے مت کرو، وہ چھوٹا ہے۔ وہ گویا اس کی التجا نظر انداز کر رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا جب اس نے دیکھا کہ اسی نقاب والے لڑکے نے پسٹل سیدھی کی۔ سائلنسر لگی پسٹل سے 3 گولیاں یکے بعد دیگرے اس کے سامنے پڑے لڑکے کو لگی۔ اس کا دل کیا وہ زور سے چیخے، لیکن آواز دب گئی۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے گن چھین لے، لیکن ہمت ختم ہو گئی۔ آنکھیں وحشت سے ابل پڑی، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ختم ہوتی ہمت سے وہ بمشکل تھوڑا سا سر کی۔ وہ زخمی کم عمر تھا، بمشکل 17-18 سال کا۔ سنو۔ اس کے کاندھے کو ہلایا۔ وہ ساکت تھا، اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کا کیا کرنے؟ سفید نقاب والا سیاہ نقاب والے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے بھی مار دو، بے تاثر لہجہ، اجنبی سپاٹ انداز۔ اٹھو پلیز۔ وہ ابھی تک اسی لڑکے کے پاس بیٹھی تھی۔ مار دیں؟ میرے خیال سے چھوڑ دیتے ہیں، پولیس کو بتا دیا تو؟ نہیں بتائے گی، تمہیں یقین ہے؟
शायद। वो उनकी गुफ्तगू से बेनियाज सफ़ेद चेहरे से मुर्दा वजूद को देख रही थी। आंखें खोलो बच्चे, प्लीज़। सुनो, प्लीज़। वो उसी तरह बैठी रही, उसका वजूद हिलाती रही। बाल बिखर गए थे, आंखों से सेल रवां हो गए। फिर किसने गन से उसका कांधा हिलाया। वो जी जान से कांपती झटके से उठी। उसकी जान की फिक्र छोड़ो, अब अपनी करो। अपनी यानी वो अब उसे भी मार देंगे। मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसका रुआं रुआं कांप उठा था। अपना घर, बिस्तर पर बड़ा बाप याद आया। उसे सहन में घूमता दानियाल याद आया। उसे चीज़ों की फहरिस्त बताती मुबशरा याद आई। मुबशरा के बाल खींचता ऊन। उसे अपनी माँ याद आई। उसे छत पर ठहरा तैमूर याद आया। जाने दें, ताकि तुम पुलिस को बता दो। सफ़ेद नकाब वाला गुस्से से घूर रहा था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वादा किसी को नहीं बताऊंगी। उसका वजूद हिचकियाँ खाने लगा था। उसे लगा वो मज़ीद वहाँ रही तो मर जाएगी। अगर बता दिया तो? नहीं बताऊंगी, यकीन करो, मुझे जाने दो। वो यहाँ इस तरह नहीं मरना चाहती थी। रुआं रुआं कांप रहा था, आंखें मुसलसल रो रही थी, दिल मुसलसल कांप रहा था। वो दोनों चंद लम्हे उसे घूरते रहे। फिर स्याह नकाब वाले ने आंखों से इशारा किया। सफ़ेद नकाब वाला एक आखिरी नज़र उस पर डालता पलट गया। मुअत्तर होंठों पर हाथ रखे हिचकियाँ रोकने लगी। चंद लम्हे सर के, चंद साथ उसका वजूद थमने लगा। चेहरा सफ़ेदी से सर्दी में ढलने लगा। फिर वो चौंकी। वो जिंदा थी। उन्होंने उसे नहीं मारा था। मौजज़ा या कुछ और? वो जिंदा थी। वह धप से नीचे बैठी, हाथ होंठों पर गया। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। होंठों पर रखे हाथ हाथ रखकर रोते उसकी नज़र लड़के पर गई, फिर खून पर। फिर वो तेजी से उस तक आई। तुम जिंदा हो? सुनो, उठो प्लीज़। वो साकित रहा। उसे वहशत हुई थी। उसे लगा वो मर जाएगी, उसे लगा वो जिंदा नहीं रहेगी। फिर दिमाग चाकने लगा। उसने नजरें घुमाई। फ़ोन कहाँ था? वो चंद कदम दूर पड़ा था। उसके अंदर वहां तक जाने की हिम्मत खत्म हो गई। खुद को इसी तरह बैठे बैठे घसीट कर वो फ़ोन तक लेकर आई। पुलिस, पुलिस का नंबर? वो वहीं कहीं था। वो होगा। माया ने कहा था कि उसे फ़ोन लॉग में पुलिस का नंबर मिल जाएगा। कॉल लॉग खोली, नंबर सेव था। ओह खुद आया। उसका हाथ कांपने लगा। मुश्किल कपकपाते हाथों से उसने उनका नंबर मिलाकर कान पर लगाया। लंदन अजलिंगटन पुलिस हेयर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? रवानी भरी अंग्रेजी में ऑफिसर पूछ रहा था। उसकी हिचकी निकली। हु इज़ देयर? उसकी आवाज़ दबकी। हेलो, पुलिस? यस, हु इज़ देयर? वो मुअत्तर सबा थी। लाहौर की मुअत्तर सबा इस्लिंगटन की सड़क पर बैठी रो रही थी। रोते वजूद से उसने कुछ कहना चाहा, जब पीछे से किसी ने फ़ोन खींचकर उसके हाथ से पकड़ा। वो करंट खाकर पलटी। सब पीछे सफ़ेद और स्याह नकाब वाला लड़का ठहरे थे। उसका दिल धड़कन छोड़ने लगा। पुलिस? हाँ, तो क्या हमने गलती की थी? उसे लगा कि उसका आखिरी वक्त है। जिंदगी बस यहीं तक थी। जो था सब यहीं तक था। मेरा तो पहले ही यही ख्याल था कि इसे भी डेविड के साथ मार दो। वो स्याह नकाब वाले से कह रहा था, वही स्याह नकाब वाला जिसकी आंखें वो पहचानती थी। स्याह नकाब वाला मुअत्तर के सामने आया। अब भी अमल किया जा सकता है। हमने रहम किया और गलत शख्स पर रहम किया। लहजा सर्द तरीन था। वो गन थामे हुए था। वो गन उसने मुअत्तर की तरफ मोड़ दी। उसका जिस्म बेजान होने लगा। बेजान होते जिस्म से उसने आखिरी बार कुछ कहना चाहा। जबान सब भूल गई। देर किस बात की? बस शायद सब यहीं तक था। यानी सब यहीं तक था। वो ख्वाब जो वो लेकर आई थी सब खत्म। वो ख्वाब जो उसने मुस्तकबिल के लिए देखे थे सब खत्म। हर शय, क्या ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी? यूं लाचारी की हालत में, एक अजनबी मुल्क में? उसके घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि वो किसी अनजान सड़क पर यूं मर गई? क्या वो खुद को यूं ख़त्म होने दे? क्या वो मुकाबला भी ना करे? मुर्दा होते वजूद में शायद ज़िंदगी की आखिरी किरण उभरी, जब वो हर खौफ भुलाते झटके से आगे बढ़ी और सियाह नकाब वाले का चेहरा नोच कर नकाब उतारा। उसकी टूटी चूड़ियाँ सामने वाले के चेहरे पर लगी। आउच! वो कराह कर दूर हुआ। मोहतर को ऊपर का सांस ऊपर रह गया। वो आंखें, वो चेहरा। एरक? वो चेहरा एरक का था। वो नीली आंखें एरक कयान की थीं। उसके होंठ सदमे से खुल गए। जहन में झक्कड़ से चलने लगे। एरक नकाब उतारता अपने गाल पर हाथ रखे हुए था। हाथ गाल पर से हटाकर देखा, उंगली पर दो कतरे खून के लगे थे। स्याह अंधेरे में स्याह खून। उसका दिमाग घूमा। जंगली बिल्ली? वो तेजी से उस तक आया था और बाजू से दबोचा। किस कदर खूनख्वार वाला तो तुम? ये तुम हो? वो अब तक बेयकीन थी। वो कातिल था। एरक कयान कातिल था। हाँ, ये मैं हूँ। तुमने तुमने कत्ल कर दिया? वो शश्तर थी। हर खौफ पर बेयकीनी गालिब आ गई थी। एरक का मुंह बिगड़ा। उसका बाजू छोड़ते वो पीछे हुआ। किसका कत्ल? ए डेविड, उठो, बहुत हो गया। उसने नीचे पड़े लड़के को लात मारी।
डेविड नामी लड़का कराह कर उठा। आराम से ब्रो, ताज़ा ताज़ा मरा हूँ मैं। मरा हूँ? एक्टिंग तक करनी नहीं आती तुम्हें? वो कपड़े झाड़ता उठ रहा था। पीछे वाला सफ़ेद नकाब उतार रहा था जैसे नॉर्मल सी बात हो, यूं जैसे कोई ड्रामा चल रहा था। डायरेक्टर कहे कट और सीन रोक दिया जाए, अदाकार किरदार से निकल कर वापस ज़िंदगी में आ जाए। और तमाशाई, वो तमाशाई जो एरक के सामने खड़ी थी, लाहौर की मौतर सबा, उसका चेहरा सदी का हैरान तरीन चेहरा बन गया। ये क्या है ये? मजाक? और क्या, जिंदा है ये, लेकिन मेरा चेहरा। सदमे से अपने गाल पर हाथ रखा। कोई चूड़ी टूटी हुई थी जो उसके चेहरे पर निशान बना गई थी। उसे टूटी चूड़ी से बनाया जाने वाला निशान दुख दे रहा था। जिसकी टूटी चूड़ी का निशान लगा था, उसका साकित वजूद होश में आया, यकीन आने लगा। मजाक मजाक। उसकी नज़र एरक के हाथ पर गई, उसे अपने गाल का गम था। गन कहीं फेंकती थी, नज़र नीचे गई, जिसे गोली लगी थी। वो छोटा लड़का सामने ठहरा था जिसने मारी थी, वो भी सामने ठहरा था। ये सब मजाक था। मजाक मजाक। उसके अंदर लावा उभरा, किसी तीर की तरह वो एरिक तक पहुंची और उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया। मजाक समझ रखा है तुमने? वो पूरी कुवत से चिल्लाई। पूरी शिद्दत से एरिक ने कान पर उंगली रखी। आहिस्ता। जहन्नुम में जाओ तुम एरिक, जहन्नुम में जाओ। उसका जब्त टूट गया, आंसू बाहर निकले। मजाक था, सीरियस क्यों ले रही हो? हम असाइनमेंट की तैयारी। मजाक? तुम्हारे लिए हर शय मजाक है? उसने चिल्लाकर बात काटी। इस कदर बेहुदा मजाक। मेरा दिल कांप रहा था, मेरा जिस्म कांप रहा था, मुझे लगा मैं मरने लगी हूँ। और तुम कहते हो मजाक था? वो चीखते हुए आगे बढ़ी और उसे गिरेबान से थामा। दोनों लड़के फौरन आगे बढ़े। एरक ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसका चेहरा लम्हे में स्पाट हुआ था। तुम सीरियस हो गई? ये सब सच नहीं था। तुम्हें हर्षिया मजाक क्यों लगती है? मेरी जॉब छुड़वा दी, मुझे मेंटली डिस्टर्ब करके रख दिया, मेरे स्टोर में मुझे धमकाया, मेरे मुल्क और मज़हब के ख़िलाफ़ बात की, और अब ये सब। मेरा क्या कसूर है रख? सिर्फ इतना कि तुमसे कॉफ़ी के पैसे मांगे थे। दुपट्टा कांधे पर ढलक गया था, आंखें सूजी हुई थीं, टूटी चूड़ियां जिल्द में घुस रही थी। लंदन की सरजमीन पर, अजलिंगटन की गलियों में लाहौर के मुअत्तर सबा लंदन के अरक कयान का गिरेबान थामे खड़ी थी। वो जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बातें ज़बान की नोक पर रखता है, वो खामोशी से उसे सुन रहा था। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ तुम आओगी। मैं यहाँ ना आती तब भी तुम ऐसा ही करते। तुम मेरे लिए काबिल नफरत बन गए हो एरक। आई एम सॉरी। वो जो कहा जाता था कि या तो सूरज मगरिब से तलू होगा या एरक किसी को सॉरी कहेगा, वो एरक लाहौर की मुअत्तर सबा से माफ़ी मांग रहा था। सॉरी? जहन्नुम में जाओ सॉरी लेकर। मैं मरने लगी थी एरक, मैं मरने लगी थी। और सॉरी? तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं मिला? हम तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहते थे, ये इत्तफाक था। उसने ना गिरेबान छुड़वाया, ना आवाज़ ऊंची की। वो झटके से पीछे हुई। तुम झूठे हो एरक, तुम झूठे हो। आंसू साफ करती वो पलटी, काटदार नज़र पीछे ठहरे लड़कों पर डाली। उनके सर झुके हुए थे, वो दोनों जैसे गूंगे हो गए थे। उसने नीचे पड़ा मोबाइल उठाया, पर्स झपटा। उसे उस वक्त यहाँ से जाना था, कहीं दूर, बस यहाँ से दूर कहीं जाना था। दुपट्टा दुरुस्त किए बगैर वो आगे बढ़ने लगी जब एरक सामने आया। इस वक्त अकेले मत जाओ, हम छोड़ देते हैं। उसके लहजे में नरमी घुल गई थी। छोड़ दो, अब वाकई मुझे छोड़ दो एरक। मेरी बात सुनो लेडी। हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई, लेकिन तुमने हमें बहुत ज़्यादा सुना दिया। हालांकि हम ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें सॉरी कहा। एहसान का शुक्रिया। वो गुस्से में थी, तैश से पूरा जिस्म कांप रहा था। मिस पाकिस्तान, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ एरक। वो वहीं रुकती पूरी शिद्दत से घुराई थी। एरक बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ, फिर हाथ उठाए। ठीक है ठीक है। वो बिना मजीद कुछ कहे आगे बढ़ गई। सुनसान गलियां, अजनबी रास्ते, जाने कितनी देर चलने के बाद वो किसी पार्क से गुजरते हुए सामने रखे बेंच पर बैठी, सर हाथों में गिराया और पूरी शिद्दत से रोने लगी। मजाक? उस लड़की के लिए सब मजाक था? यूं भी कोई मजाक करता है? होंठों पर हाथ रखते वो हिचकियों से रोई गई। ठंडा आसमान, अंदर झुलसती आग, वहशत और तन्हाई। उसे लगा दिल फटने को है। फटते दिल से उसने सर उठाया। इक्का दुक्का लोग, चंद मर्द, चंद औरतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भागती दौड़ती जिंदगी, सब जैसे जल्दी में थे। अजीब वहशत। यहाँ कोई अपना नहीं था, यहाँ कोई ऐसा नहीं था जिससे वो कहती कि उसे अपना मुल्क याद आ रहा है। उसे लाहौर की तंग गलियां याद आ रही हैं। उसे सड़क पर ठेले लगाकर ठहरे सस्ते मिलने वाले खाने यहाँ के पैक्ड ब्रेड से ज़्यादा अजीज हैं। उसे अपना टूटा फूटा मुल्क याद आ रहा था। उसे अपने घर वाले याद आ रहे थे। वही घर वाले जिनके लिए वो अपने मुल्क से दूर यूं अजनबी मुल्क में बैठी थी। वही अपने जिनके लिए उसे लड़ना था। उसे इस मुल्क से वहशत होती थी, उसे इस मुल्क के लोगों से वहशत होती थी। आर यू ओके गर्ल? उसने झटके से मुड़कर देखा, फिर डर कर उठी। पीछे बंद होती खुलती आंखों से कोई मर्द ठहरा था, नशे में झूलता हुआ।
वो डर कर 2 कदम पीछे हुई, फिर पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भागी। दिमाग सुन्न होने लगा। रास्ता भूल गया। वो कहाँ थी? दिमाग जैसे कुछ समझने की कैफियत में नहीं था। क्या करे? उसी सुन्न होते दिमाग से उसने चंद कदम खुद को घसीटा, फिर एकदम जैसे कोई ख्याल आया। उसे किसी को फ़ोन करना चाहिए था। बानो आपा, कोई भी, किसी को बुलाना चाहिए। बैग खोलते उसकी नज़र चूड़ियों पर गई, फिर चूड़ियों के साथ रखे सफ़ेद कागज़ पर। उसने झट से वो कागज़ उठा लिया। सनान। मोबाइल निकालते उसने नंबर मिलाया। बेल जाने लगी। उसका दिल धड़कन छोड़ने लगा था। हेलो। दूसरी तरफ उसका मोहतात लहजा सुनाई दिया। सनान। मुअत्तर। वो पहचान गया था। वो बस एक लफ्ज़ से पहचान गया। उसने होंठों पर हाथ रखा, आंसू उबलकर निकलने लगे। मुअत्तर बात कर रही हूँ। वो तारुफ करवा रही थी। जो एक लफ्ज़ से पहचान गया था, वो उसे बता रही थी कि वो कौन थी। पहचान लिया है, खैरियत? मुझे मुझे लेने आ सकते हैं? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। दिल बंद होने को था। कहाँ पर हैं आप? वो चौंका था। पता नहीं। मुझे नहीं मालूम। यहाँ लोग हैं। मुझे इन लोगों से वहशत हो रही है। प्लीज़ आ जाएं। वो बिना आवाज़ के रो रही थी। डर अंदर तक चला गया था। रिलैक्स, पुरसुकून रहे। मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम। ओके रिलैक्स, मेरी बात सुने। पुलिस का नंबर है ना आपके पास? उन्हें कॉल। मुझे किसी को नहीं बुलाना। आप आ रहे हैं या नहीं? 10 मिनट लगेंगे मुझे। आज आप जहाँ हैं वहीं रहें। मुझे सिर्फ ये बताएं, अपने स्टोर से कितने आगे तक होंगी? पता नहीं। शायद 10 मिनट, 20, मैं नहीं जानती। ओके, पुरसुकून रहे, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट सिर्फ। उसने कॉल काट दी, मोबाइल बैग में फेंका। गहरी गहरी सांस लेते आंसू साफ किए। सूजी आंखें रोने की चुगली खाने लगी। उसका दिल डर के मारे सिकुड़ गया था। जाने कितनी देर गुजरी थी जब स्याह कार झटके से उसके सामने रुकी। दरवाज़ा खोलता वो बाहर निकला। आप ठीक हैं? मुअत्तर ने सर उठाकर देखा। वो परेशान लग रहा था, कुछ बौखलाया हुआ भी। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट। वो शायद किसी काम में मसरूफ़ था। उसे एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। जी। सब ठीक है ना? जी। फिर रुक गया। फिर वो रुक गया। वह गायब दिमाग लग रही थी। सर झटकते वो कार तक गया। दरवाज़ा खोला। बैठे। मैं चली जाऊंगी। बोलने के बाद उसे एहसास हुआ उसने सनान को यूं ही बुला लिया था। आप डिस्टर्ब लग रही हैं मुअत्तर, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नरमी से कहा तो वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एड्रेस बताते सर हिलाती गाड़ी में बैठी सनान दरवाज़ा बंद करता दूसरी तरफ आया। उस पर एक नज़र डाली। किसी ने आपको तंग किया है? नहीं। वो आंसू जब्त कर रही थी। मुअत्तर। उसने रुख मुअत्तर की तरफ मोड़ा। आंखों में सख्ती सी थी। मुझे बताएं, क्या बात है? रास्ते में कोई मर्द था। मैं डर गई थी। बस लब काटते हुए बस इतना ही कह सकी। कौन था? मैं नहीं जानती। कुछ कहा उसने आपको? उसका सर नफ़ी में हिला। घर चलें सनान, प्लीज़। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर से फासले पर रोक दीजिएगा। रुख मुकम्मल गाड़ी की तरफ मोड़ लिया। सनान ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बाहर देखती रही। वो ड्राइव करता रहा। चंद लम्हों बाद गाड़ी बानो आपा के घर के सामने रुकी तो वो सीधी हुई, बैग उठाया और बिना उसे देखे अंदर की तरफ बढ़ गई। सनान तब तक वहीं रहा जब तक वो अंदर गायब ना हो गई हो। उसके जाने के बाद उसने सर झटकते गाड़ी चलाई। सारा रास्ता जहन उलझा रहा। अपने अपार्टमेंट पहुंचने तक सर दर्द से फटने को हो गया। दरवाज़ा बंद करते वो किचन में आया, चाय के लिए पानी रखा और सोफे पर धड़ाम से बैठा। ब्रिफ के सामने ही पड़ा था। वो पूरे दिन का थका हारा उसी वक्त अपार्टमेंट आया था जब मुअत्तर की कॉल आई। उसने ब्रिफकेस के साथ रखी डायरी उठाई। सामने स्याह हरूफ बिखरे थे। सनान सादी खान। तारीख 10 नवंबर 2024। मकाम बरतानिया इज़लिंगटन। 5वीं मुलाकात। मेरा ख्याल है इंसान को इतना रहमदिल नहीं होना चाहिए। वो ख़त भेज कर मुझसे माजरत कर रही थी। मैं बहुत रहमदिल हूँ, लिहाजा मैंने माजरत कबूल कर ली। वो भी बहुत रहमदिल है, इसलिए उसने चूड़ियाँ कबूल कर ली। लिखने वाला इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा। पढ़ने वाले को तंबीह की जाती है, वो इससे ज़्यादा कुछ मत सोचे। ये 5वां सफ़ा है जो मैं लिख रहा हूँ, और मैं सिर्फ उसे ही लिख रहा हूँ। वो कहीं नक्श हो रही है कागज़ पर, जहन में, या शायद कहीं और। वो शायद मुझे ठीक ही बंजारा कह गई थी। सफ़ा आ गया खाली था। उसने टेबल पर पड़ा पेन उठाया, सफ़ेद कागज़ पर स्याह नोक रखी। सनान सादे खान। तारीख 20 नवंबर 2024। मकाम बरतानिया इज़लिंगटन। मैं एक लफ्ज़ में उसके पूरे वजूद को पहचान गया। कैसे? मैं उसके पूरे वजूद को स्याह अंधेरे में भी पहचान गया। क्यों? वो औरत मुझ पर असर कर रही है। उसके आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। उसकी आवाज़ मुझे बेख्तियार कर रही है। मैंने आज जाना वो ज़मीन के एक कोने से मुझे बुलाएगी, तो भले ही मैं ज़मीन के दूसरे कोने पर ही क्यों ना हूँ, मैं उसके लिए ज़रूर जाऊँगा। उसने पेन रख दिया।
आंखें बंद करते सर पीछे की तरफ कर लिया, रोती हुई मुअत्तर नजरों के सामने से गुजरी। जाने वो क्यों इस तरह परेशान थी। बंजारे को अपने दिल पर शक हो रहा था। वो बंद आंखों से धीरे से बुड़बुड़ाया। अगले दिन तक वो कुछ संभल गई तो सनान को शुक्रिया का मैसेज भी कर दिया। आप ठीक हैं? उसने शुक्रिया का मैसेज नज़रअंदाज किया था। जी ठीक हूँ। उसे अब तक खिफ़्फ़त थी, ज़हन जागा था तो एहसास हुआ वो खामख़ा डर गई थी। वो कभी इतनी कमज़ोर नहीं रही थी, कभी भी नहीं। वो तन्हा रातों में अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाती रही थी। वो दानियाल के साथ अपने घर के वो काम भी करती थी जो मर्द किया करते थे, लेकिन कल रात का मंजर, गोली लगने से गिरने वाला वजूद, खून, खौफ, अजियत, हर शय ने जहन मफलूज कर दिया था। ये वही खौफ था जिसकी वजह से उसने सनान को कॉल कर ली और अब शदीद पछता रही थी। जाने वो क्या सोचता होगा, कितनी बुज़दिल लड़की है। बानो को उसने कुछ नहीं बताया था, उसकी वापसी तक वो सो चुकी थी। एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास थे जिससे दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली गई थी। सनान का एक और कर्ज उसके सर चढ़ गया था। खुद पर गुस्सा और एरक पर हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। कम से कम एरक से वो ये उम्मीद नहीं रखती थी कि वो महज उसे तंग करने के लिए इस हद तक चला जाएगा। तो मुझे वजाहत देने का कोई मौका दोगी? वो शाम को संजीदा चेहरे के साथ उसके स्टोर आया। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस पे कंप्लेन नहीं करूँगी। वह बिना सर उठाए रजिस्टर पर लिस्ट तैयार करती रही। एरक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खटाक से उसका रजिस्टर बंद कर दिया। क्या बदतमीज़ी है? वो सीख पा हुई। चुप। एरिक ने सख्ती से उंगली उठाकर उसे देखा। वो खूनख्वार नजरों से उसे घूर रही थी। तुम्हारी छुट्टी होने में 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट बाद मैं बाहर मिलूंगा। खबरदार जो मुझे डॉज देने की कोशिश की। काम खत्म करो और बाहर मिलो। हुक्म देता वो बाहर निकल गया। मुअत्तर खून के खून पीकर रह गई। उसे 15 मिनट में ऑफ मिल गया था, लेकिन वो आधा घंटा लगाकर बाहर निकली। उसे यकीन था वो चला गया होगा, लेकिन वो बाहर ही ठहरा था। मेरा पीछा छोड़ दो। उसके साथ चलने लगा तो बस इख्फा होकर पलटी। छोड़ दूंगा, पहले मुझे वजाहत करने दो। ज़रूरत नहीं है। वो पैर पटकती आगे बढ़ गई। कल के बाद से उसने तय कर लिया था कि बस से चली जाया करेगी। कल के बाद जो डर अंदर बैठा था वो सारी ज़िंदगी साथ रहने वाला था। तुम्हें नहीं होगी। वैसे तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वजाहत करना चाहूँगा। तुम शायद मुझे कोई कातिल वगैरह समझ रही हो। मैं तुम्हें फ्रॉड, घटिया, बकवास, बदतमीज़ भी समझ रही हूँ। वो सामने चलती गई। बस जाने में 15 मिनट देर थी। उसे जल्दी स्टेशन पहुंचना था। तुम्हारी गालियों की कलेक्शन बहुत बुरी है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो यकदम रुक गई, चेहरे पर बेचारगी छा गई। एरक हाथ पीछे करते हटा। फिलवक्त तुम हो। दफा हो जाओ एरक, इससे पहले कि मैं चीख कर सबको इकट्ठा करूं। वो गहरी सांस लेता 2 कदम आगे बढ़ा। मुअत्तर डर कर पीछे हुई। वो रुक गया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुमने कल किया है उसके बाद मुझे तुम्हारे साय से भी डर लगने लगा है। वो सिर्फ एक मजाक था। मजाक? तुम्हें मालूम है जब तुमने उसे गोली मारी तब मुझे एक लम्हे को लगा कि मेरे अंदर से जान निकल गई है। मुझे उस वक्त सांस भी नहीं आ रही थी। वो रात मेरे लिए भयानक तरीन रात बन गई है। तुम्हें अंदाजा है एरक, तुम्हारे इस मजाक ने मेरे साथ क्या किया है? उसकी आवाज़ शिद्दत गम से अख्ताम पर कांप गई थी। एरक संजीदगी से उसे देखता रहा। मजीद कुछ कहना है? सिवाय इसके कि मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल कमज़ोर है। मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं बची एरक। बाखुदा मैं अब थक गई हूँ। उसका लहजा लाचारी से भर गया था। एरक ने सर हिला दिया। मैंने सब खामोशी से सुन लिया, अब तुम सुनोगे और चुप। वो जो मुंह खोल रही थी उसके झिड़कने पर रुक गई। वो मजाक था, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं था। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट मिली थी कि एक असली क्राइम सीन रिकॉर्ड करके उसकी रिपोर्टिंग करनी है। वाकया, तफसील सब नेचुरल होना चाहिए। ऐसा इसी सूरत में मुमकिन था जब हम किसी असली मर्डर का ड्रामा करके किसी सिविलियन के जरिए ये काम करते। हम वहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे थे जिसके साथ ये नेचुरल सीन रिकॉर्ड किया जा सके। वो किसी तुम होगी, मैं नहीं जानता था। हमारा साथी पीछे सब रिकॉर्ड कर रहा था। ये सिर्फ एक असाइनमेंट थी मिस पाकिस्तान। और तुम्हें लगता है मैं इस कहानी पर यकीन कर लूँगी? इस कहानी पर यकीन कर लो, इसके लिए मैं अपनी सुनाई गई कहानी का स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ। वो बैग से कागज़ निकाल रहा था। सफ़ेद सफ़ात, स्याह हरूफ, चंद डायलॉग्स जो वहाँ उन तीनों ने बोले थे। कागज़ उसकी तरफ बढ़ाए, मुअत्तर ने वो नहीं लिए। क्या मालूम तुमने ये अभी बनाई हो? वो कुछ कहने के बजाय अबरू उचकाए उसे देखने लगा, यूं जैसे कह रहा हो, वाकई खातून, यानी तुम एरक के आन से ये तवक्को रखती हो कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वो इतनी मेहनत करेगा कि एक दिन में अपना सोने और खाने पर खर्च किए जाने वाला कीमती वक्त ज़ाया करे। खातून तुम किस सदी में जी रही हो? तुम एरक से ये तवक्को रखती हो? वाकई। मुअत्तर ने होंठ भींच लिए, चेहरे पर सुर्खी फैली। ठीक है, असाइनमेंट होगा, लेकिन एक असाइनमेंट? बदतमीज ने तो एक असाइनमेंट के लिए उसे मार ही दिया था। अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम ये सब करते।
میں یہی سب کرتا، لیکن تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سب نہ کرتا جو تم نے کیا ہے۔ اس کی نظر ایرک کے گال پر گئی، چھوٹے سے زخم پر اس نے دوائی لگائی ہوئی تھی۔ اسے ہلکی سے شرمندگی نے آن گھیرا، پھر یکدم وہ چونکی۔ تم لوگوں نے یہ سب کی ویڈیو بنائی تھی؟ ویل ہاں۔ ڈیلیٹ کرو اسے، وہ تیزی سے بولی۔ وہ نہیں ہو سکتی۔ ایرک، میں نے کہا ڈیلیٹ کرو اسے۔ میں نے کہا وہ اب ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ لاپرواہی سے شانے اٹھائے۔ کیوں؟ وہ ہم کل جمع کروانے والے ہیں۔ میری اجازت کے بغیر ویڈیو بنانے میں تم پر کیس کر دوں گی۔ تم کتنی ناشکری ہو، افسوس سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اپنی یونیورسٹی میں مشہور ہونے کا موقع دے رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی دھمکی دے رہی ہو۔ جس یونیورسٹی میں تم بدنام ہو، مجھے وہاں مشہور نہیں ہونا۔ وہ تپ کر بولی۔ بدنام؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی مجھ سے سب جلتے کیوں ہیں؟ خام خواہ بدنام کر کے رکھا ہے مجھے، حالانکہ میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ معصومیت یہ سننے کے بعد خودکشی کر لے گی۔ تمہاری زبان کتنی تیز چلتی ہے۔ میرے ہاتھ اس سے زیادہ تیز چلتے ہیں۔ بظاہرہ تم کل رات دیکھ چکے ہو۔ ویڈیو ڈیلیٹ کرو میری۔ اگر میں شرمندہ نہ ہوتا تو اس زخم پر تمہیں سزا دیتا۔ شرمندہ؟ وہ شرمندہ تھا؟ یہ کون سی شرمندگی تھی؟ تمہاری موجودگی سے بڑی سزا دنیا کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ چلاتی آگے بڑھنے لگی۔ اس انسان سے بحث کرنا فضول تھا۔ ایرک چند لمحے وہاں ٹھہرا رہا، پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ تم بس سے جاؤ گی؟ خوش قسمتی سے لندن میں میرے باپ کی ٹرین ہی نہیں چل رہی۔ بدقسمتی سے تم مجھے کل اچھا خاصا خوفزدہ کر چکی ہو، اس لیے میں اکیلے جانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ کل جس لڑکی کے ساتھ تم گئی تھی وہ کون تھا؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ تمہیں کیسے یہ معلوم یہ بات؟ دیکھو میں بہت برا ہوں، اور سچ ہے کہ میں ہوں، لیکن میرے اندر دو چار اچھے جراثیم ہیں جنہوں نے کل رات مجھے مجبور کیا کہ تمہارا پیچھا کروں تاکہ تم بحفاظت اپنے ہاسٹل پہنچ جاؤ۔ تم نے کسی لڑکے کو کال کر کے بلایا تھا؟ کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا؟ اس کے کان کی لوئیں تک سرخ پڑی۔ ایرک نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ تمیز سے سوال تھا۔ تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں سوال تبدیل کر دیتا ہوں۔ کیا وہ تمہارا بھائی تھا؟ نہ وہ میرا بھائی تھا نہ بوائے فرینڈ۔ تم کتنا واہیات سوچتے ہو۔ اس کے گال ابھی تک سرخ تھے۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ واہیات سوچتا ہوں۔ ایرک کی نظر پیچھے گئی، لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری بس چلی گئی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ پیچھے اسٹیشن سے میٹرو بس ابھی ابھی نکلی تھی۔ اسے صدمے نے آن گھیرا، پھر وہ تپ کر پلٹی۔ تم اس لیے میرا سر کھا رہے تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے اندر صرف 2% اچھے جراثیم ہیں، باقی 98% میں ایک برا انسان ہوں۔ ان 2% جراثیم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ بس کا کرایہ ٹیوب سے کم ہے، اکیلے جانے کا رسک وہ اگلے کئی دن تک نہیں لے سکتی تھی۔ یہ انسان، پھر میں دنیا کا جینا حرام کر دوں گا۔ ذمہ دار تم ہوگی معطر صبا۔ وہ معطر کا عین لمبا کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کا دوسرا گال بھی زخمی کر دے۔ یہ معطر ہے، درست کرو۔ یہ ایرک ہے، اس کی موجودگی پر فخر کرو۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، ایرک۔ وہ غصے سے کھولتی آگے بڑھ گئی۔ بس کے بعد وہ ٹیوب مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایرک اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، غالباً اسے بھی کہیں پہنچنا تھا۔ دن کے چند گھنٹے تو مجھے دے سکتی ہیں؟ انتہائی عاجزانہ درخواست۔ سنان کا میسج اسے صبح ملا تھا۔ وہ دوپہر تک فری تھی، لیکن پھر بھی اسے منع کر دیا۔ بانو آپا کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے سخت خلاف تھی۔ میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر اس میسج کو دیکھتی رہی۔ آپ ایڈریس بھیجتے میں آ جاؤں گی۔ وہ محسن تھا۔ وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ کمرے کو لاک کر کے نیچے آئی تو بانو آپا صوفے پر بیٹھی تھی۔ بانو آپا، سنا نے کہیں ملنے کے لیے بلایا ہے، میں چلی جاؤں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم خود بہتر جانتی ہو۔ وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے کسی فریم پر کشیدہ کاری کر رہی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں؟ میری اجازت لوگی تو میں منع کر دوں گی۔ جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن واپسی پر اس لڑکے کو یہاں لے کر آنا۔ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کچھ اچنبھے کا شکار ہوئی، لیکن پھر سر ہلا دیا۔ البتہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خام خواہ سنان عجیب طرح سے سوچتا۔ وہ اوپر آئی تو سنان کا میسج ٹھہرا تھا۔ اس نے کیمڈن پیسج کا ایڈریس بھیجا تھا۔ ڈھنگ کا سوٹ نکال کر بال گول مول باندھ کر بنا کوئی مزید تیاری کیے اس نے کوٹ پہن لیا۔ ازلنگٹن میں موسم سرد تھا اور اسے کچھ زیادہ ہی سرد لگتا تھا۔ ایک واحد سنگھار جو وہ کرتی تھی وہ اس کی چوڑیاں تھیں۔ ازلنگٹن کو اور اس کے باسوں کو جانے اس کی چوڑیوں سے کیا مسئلہ تھا؟ اب تک جانے اس کی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر سنان کی دی ہوئی پڑی تھی تو وہی اٹھا کر پہن لی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔